Well, dear students, how's doing? There is a video for you in which you will practice your coming examination. In this video, we'll talk about and discuss comprehension passages and reading for ideas and reading for meanings. We'll try to understand how to find out the opinion, and we'll try to understand the factual question, how to find out factual question, and how to find out inferential questions. Factual question means their answers are given very much in the text. And as for inferential questions are concerned, you need to think wisely and find out the answer given in the passage. Okay, so that is the way. Here we are going to start with reading for ideas. Here is the passage. Gold is a beautiful bright yellow color, and because it does not tarnish in air or water, it has been used since ancient times to make jewelry in the form of rings, bracelets, earrings, and necklace for both men and women, depending on local custom. Everybody loves gold jewelry. So important was gold to people that around 300 BC, the Greeks began to practice of alchemy and attempt to turn cheap metals into gold. Although it was never successful, alchemy continued for almost 2000 years and is seen as the foundation of modern chemistry. So here is the paragraph. It is noteworthy to find out the opinion. So just pause the video and try to find out where is the opinion. Opinion is a specific sentence. Uh, Explain the subjective 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 approach. Do you know what is subjective approach? Subjective approach is that whatever the writer thinks about some issue, and objective is how things are as it is. So he when he talks about gold according to his own perspective, it would be called as a opinion. Okay, so here is the answer. Gold is a beautiful bright yellow color. So here is gold is a beautiful, this is his opinion. And yellow color, yellow actually is not that much opinion, but gold beautiful and bright is what he thinks. And everybody loves gold jewelry, so everybody loves, this is his opinion, that it doesn't matter that everybody loves or not, but this is the particular opinion of the author. And here is the reading for meaning, and we will talk about the passage. And passage says, my mother did not tell me they were coming. Afterwards, she said she did not want me to appear nervous. She need not have worried, only she would not notice the tightness along my jaw, the widening of my eyes. I was chopping vegetables in the kitchen when I heard voices outside, the kind of voices heard really in our house. I could hear luxurious carpets in them, books and pearls, and plenty of fine food. I was glad that earlier I had scrubbed the front steps so hard. My mother's voice approached from the front room. They were coming to the kitchen. I pushed the leeks I had been chopping into place, then set the knife on the table and wiped my hands on my apron. Look at this. This is not written with my apron, it's on my apron. My mother appeared in the doorway, her eyes flashing, a warning behind her. The woman had to duck her head because she was so tall, as tall as the man following her. All our family, including my father and brother, were small. ठीक है जी, इसमें अब जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसमें हम लक्सूरियस कमी नहीं देखते हैं. लग्जूरियस, लक्सूरियस जो भी है, कंफर्टेबल, डिलक्स, एक्सपेंसिव, lush or plush. These are the meanings for, and this is also the vocabulary words for you guys to use in your essay. So scrubbed means cleaned, rubbed, brushed, washed, cancelled, erased. ठीक है ना, इसको साफ सुथरा करने को स्क्रब कहते हैं. स्क्रब क्रीम्स भी अवेलेबल होंगी अगर आप यूज करते हैं तो डक का मतलब होता है नीचे झुक जाना, स्टूप, बेंट या बाव करना. ठीक है जी. और इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं. फ्रॉम पैराग्राफ 1, व्हाट वाज ग्रिएट्स मदर वरिड अबाउट, किस चीज के बारे में वरिड थी, और इसके आप आंसर देखिएगा. What contrast between Griet's family and the couple is implied by the phrase
द काइंड वॉइसेस हर्ड रेयरली इन आवर हाउस से आपने ये कंट्रास्ट बताना है। हैड द व्हाट कंट्रास्ट इम्प्लाइड, ये कौन सा कंट्रास्ट इन दोनों से मिला है कि ये जो काइंड वॉइसेस थी कपल की तरफ से और जो घर के अंदर है उनमें क्या फर्क नजर आ रहा था आपको। और ग्रेट्स मदर आईज वर फ्लैशिंग अ वार्निंग, ये जो फ्लैशिंग ऑफ वार्निंग है उसकी आंखों में एक रोशनी और चमक थी उसकी खबरदार करने वाली। एज ब्रॉट द कपल इनटू द किचन, व्हाट डू यू थिंक दिस वाज, वो वार्निंग क्या थी आपको, वो क्या वार्निंग दे रहा था। और इसका जो डी क्वेश्चन है, द वुमन हैड टू डक हर हेड, खातून को अपना सर जो है वो नीचे करना पड़ा था। व्हाट डज द व्हाट दिस शो अबाउट द डिजाइन ऑफ गैरियस, डिजाइन की बात कर रही है, कोई फैमिली जो होम है उस होम का डिजाइन कैसा है। ठीक है, तो इसके ऊपर अब फोकस करना है। इसका आंसर ये है कि दैट ग्रेट्स वुड अपीयर नर्वस, अप्रीहेंसिव, fearful और वरिड। ये जो है ना वरिड और fearful, अप्रीहेंसिव, ये इसके नर्वस के सिनोनिम्स हैं। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं वर्ड्स के साथ और एंड में फुल स्टॉप लिखेंगे। इसके बाद बी ऑप्शन में व्हाट कंट्रास्ट, कंट्रास्ट ये था कि ग्रेट्स फैमिली वर पुअर थी and the couples were rich, they belong to two different social classes। ये इसका एक आंसर, ये भी एक्सेप्टेबल आंसर है। ठीक है, दो डिफरेंट था उसके अंदर, रिच और पुअर का। अच्छा, इसमें मोर आपने रिचरर और पुअरर नहीं लगाना, इसलिए कि हो सकता है कि ये इस एक मीनिंग में फर्क है, ये गलत किया हुआ है कि की में जो ये कहते थे कि जी देवर पुअर देवर रिचर देन द फैमिली, तो वो कंपैरिजन ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता था कि वो जब हम कंपैरिजन करते हैं वो कम रिच है वो ज्यादा रिच है, तो हो सकता है कि वो दोनों ही रिच हो। मतलब अगर एक आदमी है उसके पास 1 करोड़ रुपया है और जो उसके मुकाबले में जो दूसरा आदमी है वो उसके पास 1 लाख रुपया है, तो वो लाख रुपए वाला आदमी कंपैरेटिवली हम ये नहीं कह सकते कि अमीर और गरीब है। ठीक है, इस हवाले से ये उन्होंने इसकी मार्किंग स्कीम और टीचर्स रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये इसमें आना चाहिए वर पुअर एंड रिच, ये बताना चाहिए। अच्छा जी, ग्रेट्स मदर आईज वर फ्लैशिंग, तो क्या वार्निंग दे रहा था, वार्निंग दे रहा था टू बी पोलाइट और रिस्पेक्टफुल, वेल बिहेव्ड, टू बिहेव वेल और करेक्टली, फॉर्मली, ये सारा उसको वार्निंग दे रहा था कि जरा बंदों की तरह बिहेव करना है। और हैड टू डक हर हेड का मतलब था ग्रेट्स हाउस इट हैड लो सीलिंग या द डोरवे वाज लो, ये इसका आंसर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, ठीक। पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ते हैं। द वुमन वोर अ हेड फ्रॉम व्हिच टाइनी कर्ल्स एस्केप्ड एंड हंग अबाउट हर forehead like a swarm of bees. She made an elaborate show of watching me hard but could not fix her attention on me. This is the girl. Then she said abruptly, this is my daughter. Greets, my mother replied icily. Realizing she had been corrected, the woman turned to look at her husband. A fold of her coat caught her the handle of the knife I had been using, knocking it off the table so that it spun across the floor. The woman cried out, swatting impatiently at her curls several times. ठीक है, अब वो पिक्चर उसने किचन के अंदर जो कपल आया उसके अंदर क्या कुछ हुआ, क्या क्या वाकयात हुए। एलेबरेट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंट्रिकेट, सम्पचुअस, ऑर्नेट, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, एलिगेंट, डिटेल। अब ये सारे इसके मीनिंग है, लेकिन अगर पूछा जाए कि शी मेड एन एलेबरेट शो, तो एलेबरेट शो का मतलब इंट्रिकेट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, डिटेल्ड इसका आंसर होगा। ये रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ इसका मीनिंग जो है वो जा रहा है, तो उसने डिटेल के साथ देखा। स्वॉटिंग का मतलब हिटिंग है, जैपिंग है, स्लैपिंग, बैटिंग, बैशिंग, नॉकिंग, स्टिंकिंग नहीं होगा, स्मैशिंग हो सकता है, स्क्वैशिंग हो सकता है, तो ये हिटिंग इसके सारे मीनिंग हो। स्वेटिंग का मतलब दोनों हाथों को एक मतलब हिलाने को भी कहते हैं चीज को, मतलब अगर मिट्टी आप झाड़ते हैं दोनों हाथों को मार के, उसको भी स्वॉटिंग कहते हैं। सीने पे हाथ मारने को भी स्वॉटिंग कहते हैं। फ्लेल अबाउट का वर्ड भी यहाँ पे यूज होता है। तो इम्पेशेंटली एट हर कर्ल सेवरल टाइम्स, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि द वुमेन्स कर्ल वुड लाइक अ स्वॉर्म ऑफ बीज, ये जो स्वॉर्म ऑफ बीज का क्या मतलब है। व्हाट इंप्रेशन ऑफ हर कर्ल्स इज गिवन बाय दिस कंपैरिजन। अब ये इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है, आप जब तक सिमिली के लिए रिच इमेजिनेशन आपके माइंड में नहीं बनेगा, आप इसका आंसर उस अंदाज से नहीं देख सकते। द वुमेन्स कर्ल्स वुड लाइक अ स्वॉर्म ऑफ बीज, पिक आउट एंड राइट डाउन द सिंगल वर्ड, आपने एक वर्ड बताना है जिसमें लाइक अ स्वॉर्म के साथ जिक्र आ रहा हो, स्वैम, स्वॉर्म ऑफ बीज, उसके लिए वन वर्ड कौन सा होगा। और एक्सप्लेन फुली व्हाई द वुमन वाज करेक्टेड बाय ग्रेट्स मदर, तो वुमन को, द वुमन वाज, वुमन की क्यों उसने करेक्शन की है, ग्रेट्स की मदर ने क्यों कहा कि ये लड़की नहीं है ये मेरी बेटी है, क्यों कहा उसने। ठीक है, तो पहले कहां से देखते हैं। द वुमेन्स कर्ल्स वर लाइक स्वॉर्म ऑफ बीज का मतलब ये है कि दे वर मूविंग या फ्लाइंग अराउंड, देयर वर मैनी, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ के मानों में आता है।
और उसके कर्ल्स वर लाइक अ स्वॉर्म का मतलब जो है ना वो वन वर्ड क्या है, वो स्वॉटिंग इसका वर्ड होगा, यानी उसको हिला के दोनों बाजुओं की मूवमेंट से उसको हिलाने को स्वॉटिंग बोलते हैं, स्वॉटिंग। और एक्सप्लेन फुली व्हेदर वुमन वाज करेक्टेड, तो इसलिए था कि शी डिड नॉट केयर द ग्रेट्स वाज हर डॉटर, उसने ख्याल नहीं किया कि ये तो उसकी बेटी है, तो शी वाज रूड अबाउट और शी वाज रूड टू ग्रेट्स या हर डॉटर, और उसके अच्छा नहीं लगा ये। या द मदर शी वाज ऑफेंडेड, और मदर को ये गुस्सा आया, ऑफेंडेड हुई बाय द लेबलिंग ऑफ हर डॉटर एज द गर्ल। द मदर या शी वांटेड द वुमन हर टू ट्रीट हर डॉटर विद सम रिस्पेक्ट। ठीक है जी, इसको आपने ये तो अलग अलग लिखा हुआ है, आपने एक सेंटेंस में लिखना है कि शी डिड नॉट, द वुमन डिड नॉट केयर about the girl and she named it with the name. And the next thing is the mother of the girl did not like her attitude. Okay, Katrina, the man said calmly. He spoke her name as though held honey in his mouth. I stepped over and picked up the knife, placing it back on the table and setting a piece of a carrot back in its place. They both looked at me, his eyes gray like the sea, and his expression steady in contrast with wife's, which flickered like a candle. He looked at the chopped vegetables, each type in its own section, as I always did. I had laid them out in a circle like a pie. Do you spend much time setting out the vegetables in a pattern before you make the soup? He asked, thrown. I said that I did not. I did not want him to think I was idle. From the corner of my eyes, I saw my sister, who was peering around the doorpost and had shaken her head at my response. I did not often lie. I looked down. अब ये हुआ कैथरीना जो है ना वो जो कपल आया था उसमें लड़की का नाम था और उसका जो हस्बैंड था, उसने मैन ने उसको कामली बोला, ही स्पोक हर नेम एज दो ही हेल्ड हनी हिज माउथ, जैसे उसके मुंह में उसने शहद रखा हो। आई स्टेप्ड ओवर एंड पिक्ड अप द नाइफ, मैं आगे बढ़ी, वो जो नाइफ नीचे गिरा उसको उठाया, प्लेसिंग इट बैक ऑन द टेबल, उसने दोबारा उसको टेबल पे रखा। और फिर क्या किया, दे बोथ लुक्ड एट मी, हिज आईज ग्रे लाइक सी एंड हिज एक्सप्रेशन स्टेडी, उसके एक्सप्रेशन स्टेडी थे, और जो लड़की के औरत के जो ना वो फ्लिकरिंग लाइक अ कैंडल थे। आपने कैंडल को देखा होगा, उसमें शोला जिस अंदाज से मूव करता है, इसका मतलब उसकी जो आई साइड थी वो मूव कर रही थी। ही लुक्ड एट द चॉप्ड वेजिटेबल्स ईच टाइप इन इट्स ओन साइड, वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे देखें थ्रोन का मतलब हमने समझा था फेंका हुआ, लेकिन यहाँ थ्रोन का मतलब सरप्राइज्ड के मानो में। सरप्राइज, आई सेड दैट आई डिड नॉट नो। उसने पूछा क्या तुम इसी तरह सब्जियां जो है ना वो सजा के रखती हो, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करती, हालांकि वो ऐसा ही करती थी। तो इसके ऊपर वो ना भी किया, हु वाज पेयरिंग अराउंड द एंड ड्रूप सेड एंड हैड शेकन हर हेड एट माय रिस्पांस। ठीक है जी, तो आई डिड नॉट ऑफन लाई, मैं झूठ नहीं बोलती थी। तो आई लुक डाउन, तो जब मेरी बहन ने मुझे देखा कि जी उसने सर हिलाया कि तूने ऐसे क्यों किया, तो आई लुक डाउन, तो मैंने शर्म से अपना सर नीचे कर लिया। तो फ्लिकर्ड का मतलब यहाँ पर है स्पार्कल्ड, फ्लैश्ड, शिमर्ड, ट्विंकल्ड, ब्लिंक्ड। और जो पियरिंग है इसका मतलब है लुकिंग, गेजिंग, स्क्रूटनाइजिंग, एग्जामिनिंग के मानों में आएगा। और क्वेश्चन है, द मैन स्पोक हिज वाइफ्स नेम एज दो ही हेल्ड हनी हिज माउथ, इसका क्या मतलब है? द हस्बैंड एंड हिज वाइफ ईच लुक्ड एट ग्रेड्स इन डिफरेंट वेज, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स व्हाट दीस टू वेज वर, ये कौन से दो वेज थे? और व्हाट वर द टू फीचर्स ऑफ द पैटर्न इन व्हिच ग्रेड्स ऑलवेज लेड आउट द वेजिटेबल्स, वो किस पैटर्न में वेजिटेबल्स रखा करती थी? और व्हाई डिड ग्रेट सिस्टर शेक हर हेड, वो ग्रेट किस बहन ने उसकी तरफ देख के अपने सर को नफी में क्यों हिलाया था, या क्यों सर उसने हिलाया था? और हाउ डू यू थिंक ग्रेट्स वाज फीलिंग व्हेन शी लुक डाउन, जब वो ग्रेट ने अपने सर को नीचे झुका लिया था, तो उस वक्त वो क्या फील कर रही थी? ठीक है जी, तो इसके आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे, नंबर ए ऑप्शन है, ही लव्स ये डोट्स ऑन हिज वाइफ कैथरीना, इट शोज हिज अफेक्शन फॉर हिज वाइफ। लव्स, डोट्स ऑन, और यानी मोहब्बत करता था वो। तो द हस्बैंड एंड हिज वाइफ लुक्ड एट ग्रेट्स इन डिफरेंट वेज, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टेडी, एक तो उसकी जो मैन की लुक स्टेडी थी, लेकिन वुमेन की जो लुक थी वो फ्लिकरिंग थी, मतलब विदाउट ब्लिंकिंग, विदाउट फ्लिंचिंग, विद अ फिक्स्ड लुक डायरेक्टली, ही डिड नॉट टेक हिज आईज ऑफ, या ही हेल्ड हर गेज। जबकि जो वुमेन था वो उसकी डार्टेड थी, मूव आउट थी। तो द मैन वाज लुकिंग स्टेडीली एट द गर्ल while the woman was watching here and there, या she was examining the room generally। नहीं, इसका आंसर होगा। तो व्हाट वर द टू फीचर्स ऑफ द पैटर्न इन विच, वो टू पैटर्न कौन से थे? एक तो था कि ईच जो टाइप ऑफ वेजिटेबल हैड इट्स ओन सेक्शन, या वेजिटेबल्स दैट वर द सेम वर इन द सेम प्लेस, एक, और दे वर इन सर्कल इन द पाई शेप। ठीक है जी,
और व्हाट डिड ग्रेट सिस्टर शेक हर हेड, उसने क्यों शेक किया था? इसलिए कि ग्रेट हैड लाइड, झूठ बोला था, टोल्ड अ लाई, ग्रेट वाज नॉट टेलिंग द ट्रुथ, शी वाज अशेम्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसगस्टेड, द ग्रेट्स हैड लाइड। तो ग्रेट डिड नॉट यूजुअली लाई, असल में वो झूठ नहीं बोलती थी। और वो क्यों उसने ऐसा किया? तो एम्बैरस थी, शी वाज एम्बैरस्ड। अब देखिए एम्बैरस के कितने सिनोनिम्स हैं? अशेम्ड, शेमफुल, ऑकवर्ड, गिल्टी, डिसअपॉइंटेड, इन विद एट हरसेल्फ, सॉरी, रिग्रेटफुल, शीपिश और अनकंफर्टेबल। ठीक है जी। Paragraph 4 पढ़ते हैं। After the guest left, my mother returned to where I was sitting by the vegetable wheel. She was hunching her shoulders as if against a winter chill, though it was summer and the kitchen was hot. You are to start tomorrow as their maid, she said. You will live with them. Don't look at me like that. You know we have to do this now that your father has lost his trade. I climbed his stairs to see my father. He was sitting near the window where the light touched his face. It was the closest he came now to seeing. He had been a tile painter, painting blue soldiers, ships, and children onto white tiles. One day the kiln had exploded, taking his eyes and his trade. He had heard everything. His hearing had taken the strength from his missing eyes. I could not think of anything to say that would not sound reproachful. ठीक है जी। अब आप देखें ये सैड स्टोरी लग रही है। वो जो गेस्ट जब चले गए तो उसकी अम्मा आई, उसके जब किचन में आई तो उसके अपने कंधे हंच किए हुए थे, मतलब ऊपर की तरफ उचकाए हुए थे, कानों की तरफ अपने कंधे ऊपर कर लिए थे। तो क्यों? एज इफ अगेंस्ट अ विंटर चिल, जैसे कि ठंड लग रही है उसको। दो इट वाज समर, अगर दो इट वाज समर, हालांकि समर था, एंड द किचन वाज हॉट, और किचन गर्म था, फिर भी उसने अपने कंधे ऊपर कर लिए। क्यों किए उसने? यू आर टू स्टार्ट टुमारो एज देयर मेड, तुमने कल से नौकरानी बन के काम करना है। यू विल लिव विद देम, तुम रहोगी। डोंट लुक एट मी, मतलब ऐसे डोंट, ऐसे ना मुझे देखो तुम। यू नो वी हैव टू डू दिस नाउ दैट योर फादर लॉस्ट हिज ट्रेड, उसका अपना काम जो है ना, जो करता था, वो जाया हो गया। फिर मैं कहती है, आई क्लाइम टू स्टेयर टू सी माय फादर, he was sitting near the window where the light touched his face. It was the closest he came now to seeing. It was the closest he came now to seeing. ठीक है। He had been a little tile painter था, painting blue soldiers था, ships था, and children था। तो one day the kiln had exploded, और kiln में क्या हुआ था? धमाका हुआ था। और उससे क्या हुआ? और उसके बाद क्या हुआ था कि टेकिंग हिज आईज एंड हिज स्टेरॉइड, उसकी आंखें भी चली गई और उसका जो काम धंधा था वो भी उसे चला गया। तो ही हैड हर्ड एवरीथिंग, अब वो सुन सकता था। हिज हियरिंग हैड टेकन द स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज मिसिंग आईज, तो उसने क्या किया? तो उसकी जो हियरिंग हैड टेकन द स्ट्रेंथ फ्रॉम हिज मिसिंग, जो उसकी आंखें चली गई थी, अब वो काम सुनने से वो करता था। तो आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से दैट वुड नॉट साउंड रिप्रोचफुल, तो कहती है कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जो उससे रिप्रोचफुल हो, जिससे वो डांटे मुझे या वो शर्मिंदा फील हो। ठीक है। अब देखिए उसने कैसे कैसे बातें की हैं यहाँ पे। हंचिंग का मतलब है बेंडिंग, स्टूपिंग, या हडलिंग का मतलब होगा बेंडिंग, और कंधे उचकाने को कहते हैं। रिप्रोचफुल का मतलब होता है क्रिटिकल, सेंसोरियस, सेंसोर्शियस, अक्यूजिंग, डिसअप्रूविंग, फॉल्ट या फाइंडिंग के मानों में आता है। रिप्रोचफुल डांट डपट के मानों में भी आता है। ठीक है जी। क्वेश्चन देखते हैं इसका जी, हमारे पास है फ्रॉम पैराग्राफ 4 में क्वेश्चन है। ग्रेट्स मदर वाज hunching her shoulders as if against a winter chill. Explain fully why she was doing that. क्या पता उसे कंधे क्यों उचकाए हुए थे, हालांकि गर्मी का मौसम था, और वो ऐसे कर जैसे उसको ठंड लग रही हो। तो ये भी हमारा ये इमेजिनेशन है। जितना अच्छा इमेजिनेशन होगा, जितना हमें पता होगा कि क्यों लोग कंधे उचकाते हैं, क्यों ऐसे बात करते हैं, तो तभी हम उसके आंसर तक पहुंच पाएंगे। और सिचुएशन भी ऐसी है कि माँ जो है वो फील कर रही है कि यार अपनी बेटी को मैं मेड बना के भेज दे रही हूँ, कैसी अजीब सी बात होगी। और which disability meant that Great's father could no longer work, तो किस डिसेबिलिटी की वजह से वो काम नहीं कर सकती? ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, बच्चों वाला जवाब है। इसकी आई साइट वो चली गई थी। तो ग्रेट्स मदर वाज हंचिंग का मतलब है शी वाज अपसेट, एक शी वाज सॉरी, शी वाज गिल्टी, शी वाज अनहैप्पी, सैड, बीटन, डिस्पोंडेंट, डिप्रेस्ड, पावरलेस। और because he knows Great will be unhappy with her with the news, she does not want her daughter to be a servant, what she has to say is not easy। ठीक है ना? तो इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो आंसर देखेंगे। द मदर ऑफ ग्रेट वाज अपसेट एंड डिसअपॉइंटेड, एंड she knows that her daughter would also not like to listen the news। ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी। इसके बाद विच डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी क्या थी? कि ब्लाइंडनेस, और इज अ ब्लाइंड, ही हैज नो आईज, ही कुड नॉट सी, ही हैज लॉस्ट हिज साइट, या विजन के बारे में इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। जस्ट अ सेकेंड।
जी बिल्कुल जी, बड़ा सिंपल सा आंसर जी। When I was ready to leave the next morning, my father shuffled out to the front step. I hugged my mother and my sister before walking away from our house, carrying my few possessions tied up in an apron. Neighbors nodded to me and watched as I passed. They knew what happened to families when a man lost his trade. I knew they were compassionate people and her. And here was young Great working as a maid because her father had made the family destitute. They would not gloat, however, they could easily find themselves in a similar position. ठीक है ना। अब देखें यार, घर मतलब अच्छा खासा घर चल रहा हो और अचानक ना भी कोई यानी राय आमदन खत्म हो जाए और अपने बच्चियों को काम पे भेजना हो, तो ये बड़ा यूनिवर्सली जो है ना एक्नॉलेज फैक्ट है कि ये बहुत जो है ना पेनफुल चीज होती है। फिर जिस महल्ले से वो बेटी जा रही हो तो वो भी एक पेनफुल चीज होती है। तो व्हेन आई वाज रेडी टू लीव द नेक्स्ट, अच्छा ये देखो यहाँ पे जो कॉमा लगा हुआ है इसकी क्या वजह है कि ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है व्हेन से, और व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मार्कर है। इसका मतलब है कि ये जो क्लॉज है सारी डिपेंडेंट क्लॉज है, जहां खत्म में कॉमा लगेगा। आगे माय फादर शफल्ड आउट टू फ्रंट स्टेप, ये फुल स्टॉप एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना हुआ है। और आई हग माय मदर एंड सिस्टर बिफोर वॉकिंग अवे फ्रॉम द हाउस, तो ये भी तो बिफोर वॉकिंग माय हाउस है, ये भी एक डिपेंडेंट फ्रेज बनती है, लेकिन कॉमा इसलिए लगा हुआ कि ये सेंटेंस के बाद में यूज हुआ है। तो आई हग माय मदर एंड माय सिस्टर बिफोर वॉकिंग अवे फ्रॉम द हाउस, कॉमा कैरिंग माय फ्यू पोजेशंस टाइड अप इन अच्छा। लेकिन यहाँ पर अब क्यों कॉमा लगा हुआ है, ये लफ्ज कैरिंग है। आपको पता है कैरी के साथ जब आईएनजी लगता है तो पार्टिसिपल फ्रेज बनती है। पार्टिसिपल फ्रेज जो है वो जहाँ कहीं स्टार्ट हो या उससे पहले कोई चीज आ रही हो, हम कॉमा लगाते हैं यहाँ पे। कैरिंग माय न्यू पोजेशंस टाइड अप इन एप्रन, तो नेबर्स नॉडेड टू मी एंड वॉच्ड एज इफ आई पास, तो मुझे देख रहे थे। अब ये जो कॉम सेमीकोलन लगा हुआ है ये किसकी निशानी है, ये कंपाउंड सेंटेंस की निशानी है। तो दे न्यू व्हाट हैपेंड टू फैमिलीज व्हेन अ मैन लॉस्ट हिज ट्रेड, उनको पता था क्या हो गया। तो आई न्यू दे वर कंपैशन, मुझे पता था वो कंपैशनेट हो रहे हैं, बड़ा जज्बा हमदर्दी उनके पास आ रहा है। एंड हियर वाज यंग ग्रेट वर्किंग एज अ मेड, और देख रहे कि ये नौजवान ग्रेट बेचारी एक नौकरानी बन के जा रही है। बिकॉज हर फादर हैड मेड द फैमिली डिस्टिट्यूट, क्योंकि देखो फादर हैड मेड द फैमिली डेस्टिट्यूट, कि उसके फादर ने उसकी फैमिली को गरीब कर दिया है। दे वुड नॉट ग्लोट, लेकिन वो बहुत खुश नहीं थे, बहुत ज्यादा, मतलब ये ना वो ग्लोट का असल मतलब होता है खुल के हंसना, खुल के अपना इजहार करना। However, they could easily find them in a similar position, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं खुद भी वो इसी सिचुएशन के साथ कहीं मुब्तला ना हो जाए। ठीक है जी। तो शफल्ड का मतलब यहाँ पे देखें, स्कफल्ड, हुबल्ड, शैम्बल्ड, स्लाउच्ड, मिक्स्ड अप, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। वैसे पाँव घसीटने को शफल करने कहते हैं। और डच को मतलब पुअर, पेनीलेस, इम्पॉवरिश्ड, इंस्टॉलमेंट, नीडी के मानों में इस्तेमाल होगा। हम पैराग्राफ 5 में विदाउट यूजिंग द वर्ड्स ऑफ द पैसेज एक्सप्लेन द टू रीजंस व्हाई द नेबर्स वुड नॉट ग्लोट। वुड नॉट ग्लोट, ग्लोट का मतलब होता है एक्सप्रेस हैप्पीनेस, या खुल के इजहार ना करना, खुल के खुशी का इजहार करना, या जारी बात उनको खुशी तो नहीं थी लेकिन वो चहक चहक के बात करने को ग्लोट कहते हैं, फुल ईज्ड ग्लोट। तो मेरे ख्याल ये एक ही इसका आंसर क्वेश्चन है इसका, तो इसका आंसर ये है कि कंपैशनेट थे एक, और दूसरा ये था कि वो सिमिलर पोजीशन को देख रहे थे। तो दे वर कंपैशनेट मतलब वो कंसर्न थे, फेल्ट सॉरी था, और सिंपैथेटिक थे, एम्पैथाइज था विद ग्रेट द फैमिली। और सिमिलर पोजीशन का द सेम थिंग दिस कुड हैपन टू देम, द फादर ब्रेड विनर और कुड लूज हिज जॉब, दी दे माइट हैव टू डू द सेम थिंग दिस। ठीक है, तो ये करना पड़ता था। डन हो गया जी। अब ये इसके देख लें, रेयरली का मीनिंग आइसिली, डक, थ्रोन, एलाबरेट, रिप्रोचफुल, एब्रप्टली, शफल्ड के मीनिंग देख लें। ये रेयरली का मीनिंग है, सेल्डम, वंस इन अ वाइल, स्कार्सली, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, वोकैबुलरी है। इसको ये आप यूज करेंगे तो याद होती है। और डक का मीनिंग लोअर, मूव डाउन है। ये एलेबरेट का मीनिंग एग्जैजरेटेड, अफेक्टेड, प्रिटेंशियस, ग्रैंड, ऑब्वियस। ठीक है। और एब्रप्टली के कर्टली, शॉर्टली, अचानक से, ब्रिस्कली, ब्रूस्कली, स्नैपिशली, ये सारे इसके मीनिंग है। और आइसली का मतलब इन एन अनफ्रेंडली वे, कोल्डली, कोल्डली के मानों में आता है। थ्रोन का मतलब देखें यहाँ पे पुट ऑफ के मानों में, सरप्राइज्ड, कॉट ऑफ, टेक अबैक, अननर्व, डिसकंसर्न, फ्लश। हालांकि थ्रो का मतलब फेंकना होता है, देख लें आप क्या, यानी थ्रू, थ्रो, थ्रोन, यहाँ पे थ्रोन का मीनिंग सरप्राइज के मानों में आ रहा है। और रिप्रोचफुल का मतलब इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड, क्रिटिकल, एडमॉनिशिंग,
रिजेंटफुल, ब्लेमिंग, एक्यूजेटरी, बिटर, रिब्यूकिंग, ठीक है जी। कंडेमनिंग भी हो सकता है, नॉन पल्स्ड का मीनिंग भी आ सकता है, और शफल्ड का मतलब मूव्ड अ लिटिल एट अ टाइम। ठीक हो गया जी, दिस वाज ऑल अबाउट। आप इसके मीनिंग्स देख लें, इसको ज़हन में रखिएगा, यूज करें सेंटेंसेस के अंदर, अपनी वोकैबुलरी में यूज करें, और इसके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका गरीब बात है, इसकी प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है जी, अब आपके हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं बेटा जी। कोई क्वेश्चन आंसर है तो बेटा यू कैन आस्क क्वेश्चन, यू आर फ्री। अच्छा जी, इट वाज गोइंग फॉर टीचर्स जॉब, we would not see down upon her, that is the reason we why we are such low and corrupt, prefer haram over hard halal earnings। ठीक है भाई, ये भी आपका ओपिनियन है जी। बच्चों जी, कोई क्वेश्चन वक्शन इसके बारे में पूछना है तो प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम, पूछिए बेटा क्वेश्चन।